case anything like that happens, so make sure and that doesn't happen. Right. Good evening, everyone. Very, very excited to be here on Independence Day. And first and foremost, happy Independence Day to all our friends over here. And let me tell you one thing. We couldn't have got a better person today for all of you. Major Vivek Jacob. And he called me specially to say कि सर मेरे को veteran बोल देना because people shouldn't confuse that he's still serving. But then okay, we'll say veteran, but then once a Fauzi is going to be there like that always. That goes without saying. So it's a proud privilege for us to have Major Jacob here. I mean, for others it's a bigger privilege. For me, he's a younger brother. So for me, so I can ping him up anytime, and that's how all this is all about. So wonderful to be here with you, Jacob. Welcome to the show. Thank you, sir. Okay, guys. So for all those who are joining first time, and I see a lot of them, this is a Passion Talk series where we have every Saturday interaction with very, very different people, right from Everesters to Olympians to people who have represented country in ultra marathons. And last week, as I was telling, we had a person who has been into road schooling, taking his children in a Tata Nano to Sela, Tawang, and other places. And next week again, we have another exciting guest. But today, Independence Day, we have Major Vivek Jacob. Jacob, start off, कहाँ से start हुआ, कैसे क्या हुआ, why NDA? Because that's the first thing which comes to mind. कि NDA कैसे गए? How it all started? Sir, I have a suggestion to make. Actually, last time also, क्या हुआ था कि these are questions which we have gone through in the last two interviews. Ki why NDA and all of that. So a lot of these people, they already heard it, and if anybody has a doubt, he can go to our Insta profile. वहाँ पे सुन लेगा sir. Let's start with something that we have not talked about, है ना sir? तो ये बता कहाँ से? चल मेरे को ये बता. Okay, one thing which I wanted to ask was, we have never met. ठीक है? We have spoken once or twice, right? And this is the first time we are seeing each other live. For us it is easier to understand that हमारी जो bonding है, what is that bonding and all. But to a person who is not being exposed to this environment, what do you tell him? If I tell you anything, I take it as a right, you'll have to listen, or you tell me anything, it comes as यार करना ही है, because there's something which is there between Fauzis which connects. So for a person who is not exposed to this environment, so how does he connect? यार ये क्या चीज है which binds people together? तो सबके दोस्त होते हैं सर, है ना सर? Everybody has been to school and तो सबके दोस्त होते हैं, and everybody has been in trouble. सब स्कूल में सब लोग कुछ ना कुछ चीज में फंसते हैं. तो क्या बोलते हैं, हम लोग फौजी हम लोग वो हैं जो हम लोग इन सब चीजों में फंसते रहते हैं साथ साथ. So that's the brotherhood. Right. It's a playground and फौज की जिंदगी is like boarding school, है ना सर? तो क्या बोलते हैं, सीनियर्स होते हैं, जूनियर्स होते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और मुश्किल वक्त में साथ देते हैं एक दूसरे का, और कुछ भी हो जाए एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते, है ना सर? इन दिस केस फौज में या स्पेशल फोर्सेस में या फौज में बोलता हूँ कि इतना उस लेवल का ब्रदरहुड होता है कि मौत भी आ जाए तो हाथ तो पकड़ के ही रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं. ये है सर. तो इट्स लाइक दैट ओनली, सेम थिंग. Absolutely. So no, as they say, एक बार ये कहना काफी होता है कि सर I am so and so, and then things automatically fall in place कि हाँ ठीक है, बाकी कुछ भी. And then you have a lot of common friends, जैसे आज हर्ष सर ने डाल रखा था LinkedIn पे, he is also a Foxtrot 91 course. So sir had mentioned that post, I was telling him, मैंने कहा सर ये आप ही का youngster, and then since the difference was such, there was no interaction, but then that itself is enough, that he is so and so course या फौज में है, so that itself is the bonding which comes. Sir. Okay, then you tell me what you have not shared, because मैंने भी तुम्हारे वो वाले live session देखे नहीं. So let people hear it from you, that what is special forces, what is probation, because that generally is the thing, probation में क्या होता है, ये बताओ क्या उसकी घुंडी है?
ये सब मैंने बता दिया सर, प्रोफेशन में क्या होता है वो तो है ना सर, मैं क्या बताऊं देयर, यू नो इट इज, लेट्स टेक ऑन क्वेश्चंस, है ना सर, कुछ पूछ रहे होंगे उन्हीं से पूछते हैं, है ना, दे कैन स्टार्ट शूटिंग क्वेश्चंस एंड एनीबॉडी ना, आई विल जस्ट से वन थिंग दैट there have been lot of discussions and it is 1 hour, है ना, तो we have had discussions earlier also, ये नायर सर के साथ, फिर निर्मित ठाकुर के साथ, तो if anybody has any doubts or wants to hear, you know, आप क्लॉक ग्लोबल के इंस्टाग्राम पे जाना और ऑन करके बैठ के सुन लेना सब जो भी है, सो है ना सर, we'll waste time otherwise, तो ये ना सर क्या बोलते हैं, let's start taking, you know, questions if people have something. Mental toughness, है ना सर, हाँ, what is mental toughness या mental toughness, mental toughness is a belief, it comes from inside your spirit basically, सब में होता है, everybody has it, but you know many people don't know about it, what they have, है ना सर, all human beings are same, everybody has the same spirit, चाहे वो, you know, he may be the beggar on the street, or he may be, you know, Donald Trump, or he may be, you know, special forces, or whoever he may be, everybody has got strength and spirit, this strength of the spirit, so but बाहर की दुनिया ऐसी होती है, इतना इंफॉर्मेशन आता है दिमाग के अंदर, you know, somebody is telling you something, your parents have been telling you something till you grow up, and then somebody else is telling you something how to lead your life, तो वो कभी मौका नहीं मिलता, जब तक जिंदगी आके सर पे नहीं टूटती तब तक पता नहीं लगता कि दम कितना है ना सर, करेक्ट, दम कितना होता है, हैव नो डाउट्स अबाउट योरसेल्फ, है ना, ऑल पीपल हु आर लिसनिंग, तो everybody is the same, everybody has got the power of the spirit, है ना, you are alive, that means you are tough, so it is just how do you groom it and how do you see it, how do you realize that you are tough is, you know, there are things that you want to do in life, and टफनेस कब दिखानी पड़ती है, जब आप कुछ चाहते हो और आपके सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि आप वो नहीं कर पा रहे हो, है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यू सर, यू नो, यू आर क्लाइंबिंग एवरेस्ट एंड ऑल दैट, देयर विल बी टाइम्स यू मस्ट हैव फेल्ट इट्स डिफिकल्ट व्हाट यू आर डूइंग, इट इज नॉट एन इजी थिंग, एवरीबॉडी कांट, है ना सर, तो बट एट दैट टाइम व्हेन, यू नो, when that body strain of climbing and the climate and the temperatures and the load that you are carrying and the dangers which are involved, all of that you are facing that, it's in your face, and every time you are taking that decision to move on and keep climbing, so you realize you are mentally tough. So it's like Absolutely. that. See, once life pushes you, तब आपकी टफनेस अपने आप सामने आ जाती है, till the time you stay in comfort zone, जब तक आप खुद अपने आप को पुश नहीं करेंगे तब तक nobody else is going to push. So as Jacob said, you know, absolutely right, I agree to him. आपको वो करना पड़ेगा जो आपको आपका दिल चाहता है, वो करोगे तो आपको वैसे सिचुएशंस आएंगे जो आपको करने से थोड़ा सा रोकेगा, उसको तोड़ोगे तो आपको दिख जाएगा कि आप मेंटली टफ हो, एवरीबॉडी इज मेंटली टफ, देयर इज नोबडी हु इज वीक. Absolutely. Okay, Jacob, how did you convince your parents to join special forces? Because I remember मेरे parents ने मेरे को बोल दिया था कि करना है तो यही 3 चीजें करनी है, भूल जाओ बाकी कुछ. How did you convince them? मैंने तो बताया नहीं सर, I never told my parents. Only my mother knew that I am going to NDA. मतलब उनको पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ ऑप्ट कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ. My mother and father both are very very independent, very strong people, and they gave an education, they gave what as parents they were supposed to give, they gave me that, and then let me lead my life. They did not make any decisions for me. So and मतलब मेरे को किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी लाइफ में कि मैं ये करना चाहता हूँ या वो करना चाहता हूँ. So they let me be and let me live my life, and it is my life, it is not their life, they have lived their life, है ना सर. तो ये है सर. Wonderful. अच्छा, ये जस्ट हर्षवर्धन सर ने पूछा है. Great. देखो सोशल मीडिया बहुत recent interviews. Okay, what army lesson you want to be followed by fellow citizens? फौज की क्या सिखलाई है, which you think it's very much lacking, क्या सीखना चाहिए? सर भारत को तो सबसे ज्यादा जरूरत ये है, मतलब इन माय ओपिनियन, है ना सर, everything that you do in your life, the environment has a great impact on you, है ना सर,
कि आप सोच रहे हो कि मैं फौज जाऊंगा, या आप सोच रहे हो मैं पॉलिटिशियन बनूंगा, या आप सोच रहे हो कि मैं फिल्म स्टार बनूंगा, या मैं डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बनूंगा, या मैं अपनी बॉडी बनाऊंगा, या मैं एवरेस्ट चढ़ूंगा, या जो भी करूंगा, the environment and has a big role to play in that. So keep your environment around you bloody nice and sexy. You should enjoy your environment. If your environment is good, your friends are good, and you have kept your environment around you clean, you have put things that you like, you have put around it. If your environment is like that, you will always be able to perform better. जैसे सिंपल थिंग है, अगर आप पढ़ाई करते हो, है ना सर, देयर मस्ट बी स्टूडेंट्स ओवर हियर नो, जो पढ़ाई करते हैं, है ना, अपना पढ़ाई का एक अलग जगह बनाओ, है ना, ओन इट, ओन योर एनवायरनमेंट, है ना सर. तो क्रिएट योर एनवायरनमेंट एंड देन थिंग्स विल फ्लो. तो इट्स लाइक दैट सर. Wonderful. That's a very, very good thing, which I also keep saying to whenever I go, that, you are as good as the people you are with or as the conditions you are in. तो अगर आपके साथ में 10 हैं सुट्टा पीने वाले, तो आप सुट्टा पीने वाले बनोगे. अगर 10 आपके साथ इंजीनियर है, तो आपका ऑटोमेटिकली जो है उस तरफ ही फोकस जाएगा. हाँ. Great. So there's one guy, Hardik Gupta. He wants to know, Jacob sir, how do you introspect in your best way? How do I introspect? Okay. क्या है ना, मैं थोड़ा सा कटिंग एज में रहता हूँ सर, तो माय लाइफ इज कटिंग एज. हाँ. तो क्या है सर कि आई हैव ऑलवेज वांटेड टू एक्सप्लोर बियॉन्ड व्हाट इज ऑलरेडी देयर. सो I'm constantly hit by circumstances, constantly hit by things, and I'm constantly cutting my way through all of these things every day. So there are lots of ups and downs. So there are a lot of fluctuations. I am not in a clean sweep नहीं चल रहा है, frequency चल रही है ऐसे ऐसे ऐसे. तो क्या होता है सर कि there are times when I feel low and I don't feel good about myself or the environment around me or something, and I have learned to listen to myself about how I'm feeling, है ना सर. तो एक्चुअली बाहर की दुनिया इतना कंफ्यूजन चल रहा होता है, there is so much of data coming into your brain that you are drawn outside rather than inside. So you, over a period of time, you learn to ignore your own self, your own emotions, how you're feeling, how's your body feeling and all. So it collects inside you. तो मेरा क्या है सर कि I have taught myself to learn to listen to myself. How am I feeling? I don't negate it. If I'm feeling low, I'll say I'm feeling low, and then I'll sit down and I'll meditate a little, and I'll let go of the world, balls to the world, and I'll sit and think, how am I feeling? Why am I feeling? तो पता लग जाता है, like that. I'll spend some time and I understand what I'm feeling and why I'm feeling, and then I can take corrective action for that. It's like that. जंगल में होता है ना सर ऑपरेशन में, तो ऑपरेशन में ना सर, if you are silent ना सर, your chances of killing are higher, है ना सर. आवाज कर रहे होगे, ये इधर उधर बातें चल रही हैं, तो कुछ नहीं मिलेगा, है ना सर. Silence, you are sitting in silence and just listening. At night you can't see, so you are listening, है ना sir. So when you are listening, you will come to know what is going around you, and you will be able to react faster. You will be able to act on it. So वही है sir, in life also we must listen to what's happening without thinking, है ना sir. Judgment pass नहीं करना है, ये अच्छा है, बुरा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. Just listen, see, observe life around you, and the answer will come on its own. You don't have to do anything. Life में मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. Sometimes just sit still, be easy, है ना sir. That's all. वो ही सिखलाई चल रही है मैंने कहा. Hello sir. यार please, can I request everyone to please keep it on mute, है ना. आप उसमें chat box में लिख लीजिए, we'll address the questions whichever are there. Okay, sure. Thank you. Thanks for understanding. अच्छा ये बता, प्रोबेशन के बारे में कोई घटना सुना दो जरा, because there are a lot of people who are first time here. Any experience? Probation. One incident or something. हर वक्त घटना ही चल रही होती थी. 6 महीने में घटना थी सर. Probation itself is it's a occurrence, it's a घटना, and it's a big part of your life, and it shows you, it shows you what you are, what is there deep inside you. तो प्रोबेशन में तो आते ही मेरा सारा गड़बड़ हो गया सर.
आई वॉकड इनटू द बटालियन, जो भी है एडजुटेंट ऑफिस पहुंचा तो एडजुटेंट आस्क्ड मी, सो टेल मी व्हाई डिड यू वॉलंटियर फॉर 9 पैरा एसएफ? तो मैंने बोला सर एक्चुअली आई डिडंट वॉलंटियर फॉर 9 पैरा एसएफ, आई वॉलंटियर्ड फॉर 1 पैरा एसएफ, बट आई हैव प्लेड आउट क्लियर। तो वहीं से शुरू हो गया सर फिर तो, है ना सर। तो क्या कहते हैं, एंड काफी कुछ था सर। I'll tell you one incident, है ना सर, maybe people will understand। तो क्या होता है कि टास्क मिलते हैं सर, है ना सर, प्रोबेशन ऑफिसर को या प्रोबेशनर्स को टास्क मिलते हैं। तो प्रोबेशन ऑफिसर आई वाज द ओनली वन फॉर अबाउट 2.5 months। तो पूरी बटालियन मेरे ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो रखी थी। तो हाँ, तो एक ऑफिसर थे, उन्होंने मेरे को बुलाया आफ्टरनून में और बोला यार जेकब, यू डू वन थिंग, गो एंड गेट मी अ स्नेक, सांप पकड़ के लेके आओ। तो मैंने उनको बोला कि सर एक्चुअली इट इज विंटर्स, स्नेक्स विल बी हाइबरनेटिंग राइट नाउ। तो भी फॉक्स, आई न्यू अ लॉट अबाउट स्नेक्स। मैं बचपन से सांप पाले हुए सर, मैंने एनडीए में, आईएमए में मैंने रसेल वाइपर ऊपर ये सब पाल रखा था सर, तो मेरे को पता था सांप क्या है सीन। तो मैंने बोला सर दिस इज विंटर, स्नेक्स विल बी हाइबरनेटिंग राइट नाउ। इट वाज जनवरी 2003 सर। तो ने बोला नो आई डोंट केयर, अब तो लेके आ जहां से भी लेके आएगा। तो मैं फंस गया अभी। इफ यू डोंट कंप्लीट अ टास्क इन प्रोबेशन यू आर आउट, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो हाँ सर, वैसे ही मैं वो जीके वीके में तो कुछ नहीं आता था मेरे को, तो ये बाकी सब जब परफॉर्म करना जरूरी था। तो मैंने सोचा सांप का क्या करें, तो मैं आई न्यू आई विल नॉट फाइंड अ स्नेक। मैं इधर उधर पलटन में घूम रहा था आधे घंटे 1 घंटे, एंड यूजलेसली फ्लोटिंग अराउंड नोइंग दैट आई वोंट फाइंड द स्नेक। तो फिर मैंने सोचा यार हमारे पलटन में एक पिगरी फार्म था सर। तो मैं बोला एक सुअर ही पकड़ के दिखा देता हूँ, शायद माफ कर। फिर मैंने बोला नहीं वो भी नहीं चलेगा। तो देन आई सैट डाउन एंड स्टार्टेड थिंकिंग, नाउ in winters in probation I have to find a snake and give this man, right sir, that was my task। तो मैं सोचा ओके लेट्स थिंक लॉजिकली, है ना सर। सांप कहाँ होता है? सांप होता है सपेरे के पास, है ना सर। तो अब मैं सोचा अभी सपेरा कहाँ ढूंढूं मैं, नहीं मिलेगा। और मेरे को सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर पीटी दिखाना था, ठीक है सर। तो मैंने सपेरा नहीं मिलेगा अभी, और कहाँ होता है? जू में होता है, जू, है ना सर। तो सांप जू में होता है, तो मैंने यार यहाँ पे जू भी नहीं था सर। फिर मैंने सोचा अच्छा जू भी नहीं है, और कहाँ होता है सांप? है ना, सांप होता है सर लेबोरेटरी में, है ना सर, लैब में होता है सांप, है ना सर। बहुत दिमाग लगा रही है तुमने। कॉलेज के, यूनिवर्सिटी जो मेडिकल कॉलेज है उनके वो उसमें सांप रखते हैं, वो फॉर्मेल्डिहाइड में डाल के ना सर, डुबा के। करेक्ट। तो मैं सोचा ये साला लैब में तो होगा, लैब का कमांड हॉस्पिटल था सर वहां पे। ओके। तो मैं गया सर कमांड हॉस्पिटल, और साइन बोर्ड पढ़ते पढ़ते लैब में पहुंच गया सर। तो वहां पे एक हवलदार साहब थे, वो अपना कुछ कुछ कर रहे थे। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा लेफ्टिनेंट सो एंड सो 9 पैरा एसएफ, मेरे को ना आपके पास वो है बोतल में सांप? तो उसने बोला हाँ है, तो दिखाना जरा। तो मेरे को ले गया सर दूसरे कमरे के अंदर, जाके शेल्फ्स थे, और सबसे ऊपर वाले शेल्फ में 3rd वाला जो जार था उसके अंदर एक सांप था। इट वॉज अ क्रेट, आई स्टिल रिमेम्बर इट वॉज अ क्रेट। तो मैंने उसको बोला ये हवलदार साहब मेरे को ये सांप दे दो, मैं कल दे दूंगा वापस। तो उसने बोला नथिंग डूइंग, नहीं मिलेगा, ऐसे थोड़ी नहीं हो। तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया सर। मैं बिल्डिंग से बाहर गया और बाहर खड़ा होकर ऐसे सोच रहा था कि अब क्या करूं। वो बारिश चल रही थी, तूफान आ गया था सर। ओके। तूफान आ गया था, लाइट चली गई सर। जैसी लाइट गई मैं पीछे और फील करता करता दूसरे कमरे के अंदर घुस के जार फील किया, जार उठाया, आउट सर, भाग लिया। हाँ बस मैं वो जार लेके पहुंच गया सर यूनिट में, और थैले में लेके मैं वेरी प्राउडली आई वेंट टू दैट ऑफिसर एंड आई टोल्ड हिम कि सर ये सांप ले आया मैं। तो वो शॉक में ही हो गया सर कि ये कहां से ले आया, लेके भी आ गया। हाँ, तो उसने दिखाया यार उधर थोड़ा दूर करके दिखा करके। तो मैंने बोला सर ये बॉटल में। तो उसके बाद तो ऐसा भूत बनाया सर मेरा उन लोगों ने, बट दैट दे अंडरस्टूड, कंप्लीट हो गया। या सांप ले आया सर, जिंदा या मुर्दा तो बोला नहीं था, है ना सर।
ग्रेट, अमेजिंग, यू नो। कोई दैट एटीट्यूड ऑफ करना है वाला है तो करना है, चाहे कैसे भी करना है, यू नो, दैट्स व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, आई गेस। यस Okay. Now there's one guy again, he wants to know कि जैसे हम सुनते हैं बहुत जगह ना, नाम नमक और निशान, what does that mean, you know? ठीक है, कहीं बोर्ड में गए, यूनिट में गए, देखिए नाम नमक निशान, what is that significance of that? Why do people write that? ओके, मतलब हमारे सर SF पलटन में ऐसा कुछ नहीं लिखा होता, सिर्फ बलिदान होता है। ठीक है सर, हम बलिदान की पूजा करते हैं, बलिदान हमारा सब कुछ है। ठीक है सर, तो बट एज अ सोल्जर आई अंडरस्टैंड कि ओके व्हाट इट मींस, है ना, नेम ऑफ द बटालियन, यू ईटन द सॉल्ट ऑफ दिस बटालियन एंड यू आर वेयरिंग द इंसिग्निया ऑफ द बटालियन, है ना सर। तो दैट इज एवरीथिंग फॉर यू, यू विल लिव एंड डाई फॉर दिस, एंड it is the name of the battalion, the salt of the battalion and the insignia of the battalion, है ना सर। जैसे है ना सर, सिखिज्म में they have a symbol, है ना सर, क्रिश्चियनिटी में there is a symbol, हिंदुइज्म में there is a symbol, है ना सर। तो अलग अलग रिलीजन्स के एक सिंबल होते हैं, everybody unites around that symbol। तो निशान यही है सर, जो पलटन का निशान है, पीपल यूनाइट अराउंड दैट, दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। मैंने वैसे कभी पूछा नहीं है इसका मतलब क्या होता है, तो बट हाँ, एब्सोल्युटली, यू नो, दैट्स व्हाट यू हैव समथिंग इन माइंड कि हाँ भाई इसी के लिए सब कुछ करना है टाइप। इट कैन बी एनीथिंग, एनी सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट थिंग, सो दैट्स हाउ वी फोकस ऑल आवर एनर्जी कि हाँ भाई यही चीज है जिसके लिए वी हैव टू सर्वाइव। वी डोंट बिलीव इन एनी पर्टिकुलर गॉड या उस चीज में, बट देन दैट इज आवर अल्टीमेट थिंग विच इज देयर। Yes. Achha, yes. Interesting question. Somebody wants to know, can a vegetarian survive in special forces? Yes, he can try. मैं बताता हूँ सर इसका क्या है ना, वेजिटेरियन का ये very much vegetarian can survive in special forces and all, but the thing is हमारे कोई barriers नहीं है। ठीक है सर, कि you can be vegetarian, you can be anything you want to be, but जब टाइम आएगा तो कुछ भी करना पड़ेगा, है ना सर। तो क्या बोलते हैं आप, यू आर अक्रॉस इन एनिमी टेरिटरी एंड आप राशन पानी का सप्लाई, लंगर थोड़ा ना चल रहा है आपके साथ, है ना सर। तो आप गए थे 7 दिन के लिए और फंस गए वहां पे, घिर गए या जो भी है, और आप लड़ रहे हो वहां पे, आपके पास खाना खत्म हो गया है ना, तो क्या खाओगे? पानी खत्म होता है, क्या करोगे, है ना? चिमगादड़ होगा, उसका खून पी लोगे, है ना सर। कुछ एनिमल होगा, उसको मार खून पी लोगे। आपका बॉडी फ्लूइड चाहिए वापस, आपके बॉडी को एनर्जी चाहिए, और ब्रेन इज एक्सपेंडिंग सो मच ऑफ एनर्जी व्हाइल इन कॉम्बैट, यू नीड फ्यूल। तो उस टाइम पे सर बड़े बड़े वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन बन जाते हैं। तो कोई ऐसा सर्वाइवल वाली चीज जो आ जाती है जब, तो उस समय फिर सब कुछ करना ही पड़ेगा। तो इसलिए व्हाट वी डू, ये प्रोबेशन में क्या करते हैं, हम तोड़ते हैं बंदे को, कि ये सारी जो चीजें लोग सीख के आते हैं ना, कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, देखो जानवर मारना गलत बात है, ठीक है सर। मतलब इन माय ओपिनियन टू किल एन एनिमल इज अ रॉन्ग थिंग, ठीक है। एंड ये लोग शौक के लिए शिकार विकार करते हैं ना, दे फील इट दैट मेक्स देम फकिंग ग्रेट बिकॉज दे आर हंटिंग एनिमल्स विद राइफल, टेलीस्कोप लगा के। बैन से शिकार करना है तो पहाड़ों में, है ना सर, आतंकवादी का शिकार करो, फाइट समथिंग दैट कैन फाइट यू बैक, है ना सर। तो हाँ, सो आई डोंट बिलीव इन हंटिंग एंड दिस एंड दैट एंड ऑल animals. I don't believe in hunting animals and all, but when it comes down to survival, जब जीना ही है, टास्क करना है, I'll kill and eat a human also, no problem. Obviously, that's true. Yes. Achha, there is a question from my coursemate, you know, he's Mike 93, Nikhil Sharma. So he's just retired, and you know, as I also personally agree to him that, you know, after leaving an organization like Fauj, you know, जहाँ पे आपके पास, you know, that quality of life and the kind of life you are there, वहां से doing the corporate is not many people would like to do, and the way you have chosen to go your own way, what is your take on that? You know, how does what is your mantra of a veteran transitioning to entrepreneurship, how to do that? Okay, so sir, it is about following a dream, है ना सर। Life is not guaranteed, tomorrow is not promised, है ना सर। आज का दिन ही जिंदा निकल जाए तो बहुत बढ़िया है ना सर। So
क्या कहते हैं, सो इन दिस थिंग है ना, कब तक किसी चीज के पीछे भागते रहोगे, टिल व्हेन विल यू रन आफ्टर समवन एल्सेस ड्रीम, है ना सर. एंड मतलब somebody is already, we as human beings are here to create things. Each and every human being is so unique, that is absolutely unique, है ना sir. Like I said कि let's take Romil Batwal. A person like you, who looks like you, talks like you, thinks like you, with the experiences that you have, with the parents that you got, all your experiences that makes up Romil Batwal, has never ever happened in the history of humanity, and will never ever happen again in the eternity of time. That means you are unique. So if you are unique, you have got something unique to offer to this world, and that naturally will be your dream. So most people don't follow their dream because they feel insecure. The environment has made you insecure, the society has made you insecure कि साला एक घर काफी नहीं है, 2 घर भी होना चाहिए, तीसरा भी होना चाहिए, चौथा भी होना चाहिए, है ना सर. एंड पीपल हैव सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ व्हाट इज हैप्पीनेस. अगर आप थाईलैंड, बैंकॉक घूम के आ सकते हो, आप बड़ी इजिप्ट में पिरामिड्स देख के आ सकते हो, आप यूरोप में है ना ट्रैवल कर सकते हो, दैट इज हैप्पीनेस. बॉस, दैट इज नॉट फकिंग हैप्पीनेस. ठीक है सर. हैप्पीनेस, प्योर हैप्पीनेस इज दिस, व्हेन यू आर योर ओन मैन, you can rely on yourself, है ना सर. That for your own happiness, for your own sense of security, it is deep inside you. You don't need anything outside in the world. So now coming to so it's, if everybody is different, there are, in my opinion, there are 3 kinds of people in this world. There are followers, there are leaders, and explorers, है ना sir. So some people follow the set pattern, some people lead those followers, and then there are explorers who don't care कि follower है, leader है, नहीं है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को वो करना है जो मेरे को करना है. ठीक है. And that may be something that somebody has done before, that may be something that somebody has never done before. It doesn't matter. You are not doing it for somebody else's pleasure. किसी को दिखाने के लिए अपनी जिंदगी थोड़ा ना जी रहे हैं, अपनी जिंदगी अपने लिए जी रहे हैं. एक ही बार मिली है ढंग से, I'll live it my way. है ना. तो ये है सर. फौज में सर, I lived free in फौज also, है ना सर, and I am free now also, है ना सर. मेरे को फौज में सर कोई वो नहीं था कि क्या बोलते हैं, ये बनना है, वो बनना है, या कुछ करना है. And I was doing pretty all right as far as other things are concerned, courses whatever, मैं ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. जो बनना था मैं बन सकता था. But for me it was I was living, actually sir, मैंने जो ये 14 साल फौज में निकाले हैं, I was free. I never thought about my salary or thought about anything. जो मुझे सही लगता था मेरे को सही लगता था, जो मुझे गलत लगता था मुझे गलत लगता था, मैं बोल देता था. And I had some fantastic juniors, I had some fantastic seniors. मेरा जो environment था सर, सारे ऐसे ही थे, free थे सर. तो हाँ सर. तो I always, मेरे को कभी नहीं लगा सर कि मैं फौज में हूँ, किसी रिस्ट्रिक्शन में हूँ या किसी चीज में हूँ. I never felt like that. I always felt free, and there were people who would try to stop me or curtail me or this or that, but I was pure sir. मतलब मेरे को कोई ऐसा कोई रोक नहीं पाया मेरा अपना जो मुझे करना था वो करने के लिए. And what I was doing was, I knew what I am doing is good for the organization. The organization needs people like me. अगर मेरे जैसे लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होंगे तो साले गड्ढे में जाएंगे, ये मेरे को पता था सर. So if anybody tried to stop me, तो मैं बोल देता था कि सर ठीक है सर, आप चिट्ठी बनाओ और मैं उस चिट्ठी का जवाब दूंगा और फिर देखते हैं, है ना सर. Right. Don't tell me, give it to me in fucking writing, I'll give it back to you in writing, let's see, है ना सर. If you are so correct, let's see, है ना. तो ये था सर. And I was very successful in what I did. In my job, I was fucking good, sir. जब मैं बाहर निकलता था तो मैं कुछ लेके ही आता था वापस. It was like that. So wonderful. I was good at what I did. I was very, very good at what I did. And so professionally, nobody could challenge me. Professionally, he doesn't know what the fuck he's doing. Nobody could say that to me. So I was free, sir. And now that so फौज में भी free था, sir. And मैंने कभी नौकरी की तरह से फौज को नहीं देखा मैंने. It was my passion. I loved doing what I do and what I did. And the day I felt that I have grown, I left that and I found something else. So it is not about fauj or civil or this or that, है ना सर. कि yeah, it is not about नौकरी or independence.
मतलब अगर मेरे को किसी की नौकरी करने में खुशी मिलेगी तो मैं कर लूंगा सर, पर कोई मतलब सर, एब्सोल्युटली हाँ तो वो है सर, यू मस्ट, इट्स वन लाइफ, है ना सर, वन लाइफ। फौज में हो गया, अभी पेंशन भी मिल गई होगी सर, जो सर जो पूछ रहे हैं, पेंशन भी होगी सर, बिल्कुल और क्या है, भूखे थोड़ी ना मरोगे, है ना सर, वंस इन योर लाइफ, है बिल्कुल ना। देखो तो बड़ा लगता है सर, फौज में ना मरने के लिए तैयार हैं, गोली खा के मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम डर लेंगे मर लेंगे, पता नहीं क्या क्या कर लेंगे, बट राइट आगे डर लग रहा है ना, थिंकिंग कि यार मैं मेरे सैलरी नहीं कमाया तो क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा सर, क्या होगा। मैं तो बोलता हूँ आई हैव स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद, बिकॉज ऑफ माय वर्क और व्हाट आई एम ट्राइंग टू राइट अचीव on the journey that I am taking, talking to some big people, बड़े बड़े बिजनेसमैन मिलते हैं सर, है ना सर, बिग बिग राइट पीपल who flash their money, पैसा दिखाते हैं कि कितना पैसा समझ है, गए किस किस को जानते हैं, है ना सर, बहुत बहुत लोग मिलते हैं ऐसे मेरे को आजकल। तो मैं उनको ना सर, मैं सुनता हूँ, दे क्लासिफाई फौजीज या है ना कि थोड़ा पैसा दिखा दो या थोड़ा सा शोहरत दिखा दो तो है ना फ्लैट हो जाएगा। तो मैं राइट उनको बोलता हूँ कि सर देखो ऐसा है कि मेरे को ना, मेरा एक्चुअल जो ड्रीम है, मैं अकेला पहाड़ में चढ़ गया ना सर, तो मैं अपना वहां पे लकड़ काट के अपना कैबिन बना दूंगा, बीज बो के अपने सब्जी उगा लूंगा, और मैं जो बो एन आरो बना के मैं अपना मीट मीट खोज दूंगा, आई विल हंट एंड आई विल बी हैप्पी, आई विल फकिंग मेडिटेट एंड आई विल फकिंग चिल इन लाइफ। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, करेक्ट मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है सर। तो व्हाट कैन यू ऑफर मी, है ना सर, वो वाली कहानी है। सो आई डोंट फील एब्सोल्युटली at all. I am not afraid of वेरी नाइस life. I feel afraid of life, and I like living like this. I feel free, है ना सर। तो ये है सर। ग्रेट यू नो दैट रिमाइंड्स मी मैं एक जैसे अभी रिटायरमेंट से पहले कॉन्क्लेव चलते हैं वेटरन कॉन्क्लेव में गया तो एक मेरे को सरदार जी मिले रिटायर्ड कैप्टन सर साहब काफी टाइम पहले रिटायर हो गया था तो मेरे को कहते हैं यार बचपन तूने ये एवरेस्ट किया मैंने कहा हाँ सर कहते हैं यार तू फिर क्यों जा रहा है ये कॉर्पोरेट के चक्कर में तो मैं भी उस समय पे थोड़ा डाउटफुल था मैंने कहा नहीं सर थोड़ा सा डर लगता है ये वो कहते हैं साले जब तू एवरेस्ट गया था तब तेरे को हाँ डर नहीं लगा कि घर पे ये है और वो है जब तू कारगिल के टाइम पे वहाँ ओपीजे में था तब तेरे को डर नहीं लगा अब तेरे को ये फुद्दू होते हुए डर लग रहा है कि ऐसा होगा मैंने कहा एंड देन ही वेंट ऑन द स्टेज वो स्पीकर था उसने तब उसने इंस्टेंट सुना दिए कहते देखो मैं इससे मिला मैंने कहा यार किससे मिल रही है बाद में बट देन इफ यू थिंक ऑफ इट एब्सोल्युटली राइट है यू नो वंस यू बीन विद टेररिस्ट वंस यू बीन देयर तब तो मैं डर नहीं लगा कि यार क्या होगा है और अब तो मैं लग रहा है कि यार पेंशन आ रही है उसके बाद अब कैसे करेंगे मतलब दैट्स हाउ स्टूपिड पीपल कैन गेट यू नो दिस इज दैट it is natural sir, it is natural, because it is natural to feel like that, it मतलब I don't judge that person, but है ना sir, it is very natural to feel like this कि you know keep building security is an illusion, it's an illusion, है ना sir, it is an illusion which has been created by society, it has been fed into your brain and you live your entire life like that in that illusion, है ना। फिर मरते टाइम समझ में आता है कि फक अप हो गया साला, फक अप मार दिया, खत्म है हो ना, गया यही होना था बिल्कुल तो इससे अच्छा तो मैं जी लेता, है ना सर। सो इट्स एन इल्यूजन एंड वन मस्ट स्लो डाउन इन लाइफ एंड अंडरस्टैंड कि क्या है, व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉट रियल। योर लाइफ इज रियल, एब्सोल्युटली इनसिक्योरिटी इज अनरियल, है ना सर। till some till बिल्कुल some level, है ना सर, till some level, okay, अब you got a pension now, what else do you want in life, मतलब और क्या, लोग भूखे मर रहे हैं रोड पे, है ना। तो एंड हम लोग फौजी हैं, बिल्कुल हम लोग इतनी लड़ाई देखी है, 14 15 20 साल, है ना सर, लोगों ने लड़ाई देखी है, बहुत को इतना क्लोजली देखा है, तो फिर कौन राइट सी सिक्योरिटी, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, है ना सर। बिल्कुल नो और एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू अगर भूख लगी तो छीन लेंगे सर, क्या है। नहीं नहीं वो सब जब सांप पकड़ के ला सकते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है मैं तो एग्री बोलता था सर, मेरे को तो ऐसा हो गया था सर कि व्हाट आई फील इज, मेरे को ना, मेरे पास अगर सब कुछ छिन गया ना, यू थ्रो मी ऑन दिस रोड, है ना, मेरे को मेरे घर के सामने वाले अगर रोड पे मेरे को फेंक दिया, तो 7 दिन के अंदर, विद इन 7 days, जो गाड़ी यहां से वहां जा रही है और जो गाड़ी वहां से यहां जा रही है, आई टैक्स देम, पैसा निकाल दूंगा मैं अगर मेरे को चाहिए तो, इफ आई करेक्ट नीड इट। हाँ तो ये है सर। है ना वेरी ट्रू सी जेकब as I see you, as I know you, there's a lot of you are very confident, you know, कि ऐसा कर सकता हूँ मैं. But then not everybody is like that. So there's one question which has come, you know, that आप कभी SSB में जाते हो, फेल हो जाते हो, फिर से गए, कहीं और गए, फेल हो गए. Time and again, you know, failure comes. I'm sure you have also seen a lot of failures. It's just that people are not seeing your aspect of this. So they feel कि यार ये बंदे के पास तो सब कुछ ही है जो चाहिए, पर ये तो कभी फेल ही नहीं हुआ.
right? But then not everybody is that confident या उसको doubt में रहता है. So how do you tell that people to how to gain confidence या अपना विल पावर वगैरह कैसे स्ट्रांग होना चाहिए? तो इसका ये है सर, आई ऑल्सो वेंट फॉर SSB. फर्स्ट टाइम आई डिडंट क्लियर माय रिटन एग्जाम, सेकंड टाइम आई क्लियर्ड माय रिटन एग्जाम, बट आई डिड नॉट क्लियर माय SSB. I was out in the conference. They asked me some funny question. I probably didn't answer correctly, and they shutted me out. And I was very heartbroken. It was, for me, it was not about me. It was about my family that I had to look after, and so many things were there. I was very, very heartbroken about it. But ठीक है सर, got over it, है ना सर. And third time दिया, and third time I got through written also, SSB also, medical also, and landed up in NDA also. So, but that's that. What I want to actually say, and what I have understood about life is that sometimes, firstly you have to understand why do you want to join फौज, है ना सर. अगर फौज की बात कर रहे हैं तो आप फौज क्यों जाना चाहते हो? फौज आप उस तनख्वाह के लिए जाना चाहते हो? आपको उस टाइप का वो पर्स एंड प्रिविलेजेस चाहिए, या आपको वो इज्जत चाहिए जो एक फौजी को मिलती है ना? या सम गर्ल्स विल लुक एट यू एंड फील कि भाई यही है टॉम क्रूज, और व्हाटएवर इट इज, है ना सर. तो यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर गोइंग आफ्टर समथिंग, है ना सर. एंड इफ द रीजन व्हाई यू आर गोइंग आफ्टर समथिंग इज एक्सटर्नल, इट इज अ फक अप. एब्सोल्युटली, है ना सर. तो है ना सर, at some point, है ना सर, let's say when you were climbing Everest, maybe शुरू में ये था कि ठीक है जब मैं चढ़ जाऊंगा और ये होगा वो होगा and whatever, or maybe at some point, but while climbing ना सर, वो जो बाहर की चीजें होती ना कि लोग ताली बजाएंगे देखेंगे, वो it melts away, है ना सर. What is left? Finally you were able to climb Everest because you wanted to climb it, है ना सर. तो choose your goals wisely, that is what I would say. And if your heart wants that, you will get it. There will be failures, there will be times when something may not happen. You will try and आप पता नहीं मतलब इतनी मेहनत कर दोगे, दिन रात पसीना भरा कर दोगे, एक कर दोगे, and it may not happen. ठीक है सर. And so keep walking, keep trying. At some point, if it is really your destiny, it's written in your heart, you will reach there. You will reach there a very wise man. Failures make you wise. एंड लाइफ में विजडम की बहुत जरूरत है सर, नहीं तो फकअप हो जाएगा, है ना सर. सो इट्स फेलियर एंड सक्सेस, लाइक आई सेड, दे आर लाइक सीजन्स, है ना सर. दे कम एंड गो. डोंट गेट अटैच्ड टू सक्सेस, डोंट गेट अटैच्ड टू फेलियर्स, है ना सर. बी अटैच्ड टू योरसेल्फ. Fucking love yourself inside out. You are the man. There is nobody else on this planet as good as you, है ना सर. बिल्कुल. For it, वो है सर. तो that's true. A lot of people have different perception of फौज. जैसे I remember कल मेरे को एक रांची से एक बंदे का फोन आया, कहता सर मैं फौज में जाना चाहता हूँ. मैंने कहा क्यों जाना चाहता है? कहते सर माउंट एवरेस्ट चढ़ना है. मैंने कहा यार you got to be extremely lucky. It's not that because what people feel कि यार ये चढ़ गया तो हमें भी माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो फौज ही है. तो that doesn't happen. मतलब it's not. You got to be extremely lucky, and Jacob, frankly I feel destiny plays a major role, and we underestimate destiny big time. If it is there in you, या आपकी डेस्टिनी में लिखा है तो होगा ही होगा. It's not that you don't try and typically bank on कि यार डेस्टिनी में लिखा है तो मिलेगा ही, but then अगर आपकी किस्मत में लिखा है तो मिलेगा ही मिलेगा. आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए भी. So that's my take on it, which I've realized with so many years of experience. अदर क्वेश्चन. इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ सर. पहला सर एसएफ में काफी साल निकालने के बाद ऑपरेशन कर करके मैंने एक दिन सोचा बैठ के, मैं ना वो एक घर का कंस्ट्रक्शन देख रहा था, तो लेबरर्स काम कर रहे थे, है ना सर. वो इतनी ईंटें उठा के जा रहे हैं और सीमेंट लगा रहे हैं और इतना लोड उठा रखा है ना सर. तो मैं देख रहा था यार बड़ा मुश्किल काम है ये. एंड स्टार्ट कि मैंने 10-12 साल किया क्या, 30 केजी, 25 केजी, 30 केजी, 35 केजी उठा के ना रात भर चढ़ रहे ऊपर नीचे, मतलब सर बॉडी का जूस निकल जाता था. बढ़िया, मतलब काम वही है ना सर. मतलब इन द सेंस मतलब बॉडी की वही इफेक्ट हो रहा है. दे आर आउटकम ऑफ देयर इज डिफरेंट, आउटकम ऑफ माइन इज डिफरेंट, बट इट इज जस्ट परसेप्शन, है ना सर. तो है ना, डोंट रन आफ्टर एनीथिंग इन लाइफ. जस्ट, है ना सर, आप खुद हो, यही अचीवमेंट है. यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन लाइफ आफ्टर बीइंग बोर्न, है ना सर. तो
Just people should learn to be easy with themselves. People are very very harsh on themselves. खुद को ना सर मतलब कोसते रहेंगे या वो करते रहेंगे और they'll keep comparing themselves and all, and that's why they fall into this pit of low self confidence and this, and it's very natural. but है ना ये कि किताब में लिख लेना चाहिए किसी को कि I and I am the best version of myself and my duty is to be myself only, and I am already successful. इसके बाद देखेंगे क्या होता है ना. People should understand what they are. True. Problem I think comes in they listen to such talks. उनको लगता है कि यार instant gratification मेरे को भी कल करना चाहिए, मेरे को भी instant result मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर then they get demoralized, not realizing the hard work which is gone behind, जिसकी वजह से कोई individual has come to a certain position. So they're not seeing that part and they only see the outcome of it. So obviously that thing comes into play. Okay, someone wants to know that how is life of an introvert in Fauj? कि introvert बंदा और extrovert बंदे में क्या अंतर है फौज में? Is there any typical introvert who do well या extrovert who do well? कुछ है ऐसा बंदा? ऐसा कुछ नहीं है सर. I don't think so. है ना सर? You have to be good at what you do. है ना सर? If you are good at what you do, you are a professional. You are an expert at what you are doing. You are a specialist. है ना सर? It doesn't really matter if you are introvert or extrovert. है ना सर? कुछ लोग there is misnomer. एक ये misnomer चलता है फौज में कि links and pings and this network and that network, ये कर लो वो कर लो आप career में ऊपर चले जाओगे, है ना, things like that. Right. I think that is firstly it is a misnomer, and second thing है ना सर, lift लेना ना सर, it is like taking an injection of poison, है ना सर, कि बिल्कुल. हाँ, you are fucking yourself only. अगर आप किसी से बातचीत करके उसको घर में इनवाइट करके उसको दारू पिला के कुछ उससे फेवर ले रहे हो, you are taking more than you deserve. You are digging your grave. आप अपना गड्ढा खोद रहे हो. ठीक है सर. This network is taking you, this networking that you are doing by being extrovert, unnecessarily extrovert. Be yourself. You are an extrovert, very good. If you are an introvert, very good. It doesn't matter. Be a specialist. But if you try to be something that you are not, you will get something that you don't want. है ना सर? बिल्कुल सही बात है. कुछ एक चीज बताए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है. ये है एक मेरा फ्रेंड है, ही इज देयर इन IIM लखनऊ, वहां से PhD कर रहे हैं डॉक्टर साहब बनने. तो ही वांट्स टू नो व्हाट आर योर वीकनेस एंड इनसिक्योरिटीज, बिकॉज सबको लगता है कि भाई जेकब है तो इससे इतना सारा देखा है तो इसमें कुछ हो ही नहीं सकता. So what do you feel insecure about? What do I feel insecure about? Actually, sir, I don't feel insecure about anything. I used to. There naturally, matlab, I have realized a lot of things in life. What I have learned in 3 years, मेरे को एक तो in SF in those 14 years, I was on cutting edge of life, है ना सर? तो बहुत सारी चीजें मैंने देखी शायद समझ नहीं आई होंगी, उतनी मेच्योरिटी नहीं थी, है ना सर? But when I have come out in 3.5 years that I've been out from SF, so I got time to reflect and I got new experiences, and every day was a fucking learning experience, and I have probably learned more in 3.5 years than I learned in 14 years or 18.5 years that I spent in this thing. I learned a lot. I met so many people, and I learned that insecurities are there. It's an illusion in the brain, है ना sir? It's an illusion in the brain. Insecurity इस चीज से डर लग रहा है, कभी कल natural fears कि यार मेरे पास अगले महीने का मैं रेंट कहाँ से दूं, है ना सर? कहाँ से आएगा पैसा, है ना सर? ये क्या बोलते हैं, अपने कुत्ते को खाना कहाँ से खिलाऊंगा अगले महीने मेरे पास पैसा नहीं होगा तो, है ना सर? इसको तो खाना है, कहाँ से खिलाऊंगा? और या फिर I wanted to travel or do something, वो कैसे करूंगा मेरे को, है ना? So there are so many things. Most insecurities are around money, and then I have some habits like smoking and things like that. So one has some insecurity about health, है ना सर? बिल्कुल. So there is some insecurity about health also, कि TB हो गया तो कैंसर हो गया तो ये हो गया तो क्या हो जाएगा, है ना सर? Things like that. These are natural things, but I have reached a अंडरस्टैंडिंग इन लाइफ, मतलब जो मुझे समझ में आता है सर कि ये सब कुछ भ्रम है, इल्यूजन है ना सर? और ये तो हमारे वेदाओं में लिखा हुआ है कि ये सब कुछ भ्रम है, ब्रह्मांड,
So it's okay. I mean, if you feel insecure, it's fine, you know. But introspect that this thing. If you look at life close enough, you will see ये सब बकवास है ना sir? There are people who are so healthy, they don't smoke, don't drink, never been to operations, not gone to war or this or that. They die in a road accident, है ना sir? So है ना, there are people who have become so rich with millions, है ना? आप विजय माल्या को देख लो, है ना sir? मतलब he was king of good times, है ना? King of good times. But क्या है sir, अपने देश नहीं आ सकता अभी वापस, है ना? तो ये ना, insecurity and all these things are actually illusion. One should understand it as an illusion and let it go, release them. तो ये है sir. अच्छा, next thing which intrigues me, and another guy from Hyderabad, friend Vignan, he wants to know how did you make the transition to cloth? ये चीज कहाँ से आई? Because मेरे को भी तो पहली बार किसी ने ये वीडियो क्लिप भेजी, मैंने कहा क्या बंदा है ये, कहाँ पे किसमें घुस गया, यहाँ फौज से निकल के. तो where did it start? कैसे स्टार्ट हुआ ये? मेरे को खोलना था सर स्काई डाइविंग स्कूल. I had a dream. मेरे को ये था सर, there are two things that when I decided that I don't want to do this, killing willing business, when I thought कि बस हो गया यार, ये हो गया, है ना सर? There are other things in life also, है ना सर? And I was searching for something. तो मैंने एक नोटपैड लिया और पेंसिल लिया सर, और मैं लिखता रहता था कि मेरे को आता क्या है. मेरे को स्काई डाइविंग आती है, स्कूबा डाइविंग आती है, ये मेरे को है ना, ये कुछ ये चीजें पता है, और मैं क्या करना चाहता हूँ. I want to fly, learn how to fly a plane, है ना? I want to climb this thing, that thing. जो भी था, मैंने ये सब चीजें लिखी. I wrote them down and I crystallized my dream कि I wanted to start a skydiving school and a scuba diving school under one roof on a beach. हाँ, कि बंदा है ना सर, सी प्लेन में उड़ेगा और वो flipper लेके, and he will fly and he will jump out of the aircraft in a scuba suit, and he'll free fall and he'll reach near the water and he'll deploy his parachute and release his parachute near the water and he'll dive into the water, and 10 meters below there will be a team waiting with पूरा cylinder and all that. वो नीचे जाएगा, वहीं पहनेगा and he'll fucking dive. That was my dream. And that was my dream, and believe me sir, मैंने पूरा रिसर्च किया, ये किया वो किया. I landed up, मतलब मैं काफी आगे निकल गया था इसमें. मैं काफी आगे निकल गया था. I met the right people, everything. मतलब I was ready sir. मतलब ये हो रहा था. It was happening. Right. It was happening, and because of some personal circumstances, break लग गया. ठीक है sir. मतलब next morning I was flying to Thailand and Dubai to do recce of skydiving schools, and पूरा business plan बनाने के लिए मैं जा रहा था sir. But something happened. I had to cancel the tickets and things like that, and basically shit had hit the fan. तो क्या कहते हैं, I had to stop. So I could not go for 2-3 months, and in those 2-3 months I thought something. मैंने सोचा यार ये $20-25 million जो मुझे बंदा दे रहा है ये स्कूल वूल बनाने के लिए, है ना सर? अब उसको वो पैसा तो उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट है. अब वो डाल रहा है 25 मिलियन, तो उसको 100 मिलियन तो चाहिए वापस, है ना सर? अभी डाल रहा है बिजनेस सेंटर. यहाँ 100 मिलियन कमाने के लिए 10 साल लग जाएंगे, है ना सर? इट विल टेक टाइम. तो 10 साल तो he owns me for fucking 10 years because he has given the money. Right. And skydiving and scuba diving is not my life. That is one of the things I like to do, but it is not me. Tomorrow I may want to do something else. So for me, what am I? I am free. I love my freedom. So for me, that anything which is going to box me, I don't want it. कोई भी चीज मुझे अगर पकड़ेगा तो मुझे नहीं चाहिए. तो that was a good thing in life that happened to me. And ऐसे करके how did reach Claw? तो मेरा फिर वो skydiving accident वगैरह हो गया था. I met this Air Force officer on a wheelchair, है ना सर? उसने स्विमिंग पूल में डाइव मारी, he got knocked down, paralyzed, and I met him. And he asked me कि सर आप कमांडो हो, आप तो स्कूबा डाइविंग वगैरह करते होगे, मैं भी कर सकता हूँ क्या? So from there it started. I realized कि सर ये तो एक बंदा है. There are 7 crore people with disabilities in India, 7 to 10 crores. ठीक है सर? Different levels of disability. There's a 1 billion population of the world which is suffering disability, some form of disability. It's a fucking market. It's a market. मैं तो ये सर मैंने ओपन टाई ग्लोबल समिट में बोला हुआ है कि आप लोग बेवकूफ हो.
आप लोग यू आर लुकिंग at people with disabilities like this is not how you should look. You should look at it as a fucking market. These are people who have got such spirit, sir. टांग नहीं है, हाथ पैर नहीं है, सब स्कूबा डाइविंग करना चाहते हैं, स्काई डाइविंग करना चाहते हैं, पहाड़ चढ़ना चाहते हैं, ठीक है सर, है ना। पैसा तो हम ले आएंगे, स्पिरिट तो होनी चाहिए, है ना सर। इनमें स्पिरिट है ना सर। Wonderful. So, and you know, if there is a willingness in a person to do something, that means it is a market, and this is a 7 to 10 crore bloody market, ठीक है सर। तो इसमें क्या है सर, I started like this and I thought कि यार it is a test of our skills also. अगर मैं if I can train a person with disability, a person who is paralyzed in scuba diving and skydiving and mountaineering, तो मैं आम आदमी को तो सिखा ही दूंगा। Obviously. तो like that and ऐसे करके, तो ऐसे करते करते तो we started traveling sir. I had made a promise to that guy कि मैं उसको कराऊंगा, उसके चक्कर में मैंने सर 100 लोगों को करा दिया सर। We traveled across India. He was, हाँ सर, we started from Chandigarh and फिर Delhi and Bombay and Lakshadweep, ऐसे करते 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 पहुंच गए सर। मेरे पास कुछ नहीं था। I have told before also, I did not have anything, I did not have money, I did not have a pension, I did not have anything. मैं अगले महीने का रेंट सोचता रहता था कि ये रेंट कहाँ से आएगा, बाकी तो छोड़ दो, ठीक है सर। तो एंड बट क्या हुआ सर, आई वांटेड टू डू इट एंड आई बिलीव्ड इन व्हाट आई वाज डूइंग। आई बिलीव दैट व्हाट आई वाज डूइंग इज द राइट थिंग, इट्स अ गुड थिंग, संसार में इसकी जरूरत है। तो वो था, मैं लोगों को फोन किया, उनको बताया कि मैं ये हूँ और मैं ये कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ। मेरे तो उन्होंने बोला आपको किस चीज की जरूरत है, मेरे को ये चाहिए, आई नीडेड स्कूबा सिलेंडर्स। एक बंदा था सर, एंड द यूनिवर्स विल प्ले अलोंग विद यू, है ना सर। इफ यू फॉलो योर हार्ट, opportunity will be created. You must have wanted to climb Everest long time ago, but you got the opportunity over there, है ना सर। Right. बड़े लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में जो एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं उनको मौका नहीं मिलता, पर आपको मिल गया, राइट सर। बिल्कुल वही है। So it's like that sir, life is like that, है ना सर। life is a magical experience. ये एक बहुत बड़ी पिक्चर चल रही है, ठीक है सर। it is a magical experience and everything is magic around you. How to tap into that magic? You know, be free. Nothing will happen to you, है ना सर। अगर है ना सर रोटी कपड़ा नहीं मिला तो क्लॉ के पास आ जाना, हम खिला देंगे, ठीक है। Obviously, that's great. You know, that kind of attitude saves you through. Otherwise, छोटी-छोटी चीजों में ही जिंदगी बीत जाती है। टूटने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं सर जिंदगी में, है ना सर। टूटते ही रहेंगे फिर, पॉइंट, है ना सर। यू आर बोर्न टू एंजॉय योर लाइफ, लाइफ शुड बी एंजॉयड एंड नथिंग एल्स, है ना सर। तो एंजॉयमेंट, टेक सक्सेस एंड फेलियर से आप डिटैच हो जाते हो। जस्ट डिटैच, क्या फर्क पड़ता है, आप एक्शन करो ना, आपको जो करना है वो करो, कौन रोक रहा है, करो। आपको फौज में जाना है, आप करो, तैयारी करो, आप एसएसबी दो, रिटर्न दो, इंटरव्यू दो, करो। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, है ना सर। तो क्या हो गया, जिंदगी नहीं खत्म होती यार। आई फील यू नो अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी, एक गई तो दो अच्छी मिलेंगी। दैट आई ऑलवेज फील। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो नो बाकी क्वेश्चन to enjoy life. Very true, you know, absolutely. That's it. मेरे को I was giving a talk 2-3 days back, so there was this guy of 52 years. कहता सर मैं भी ट्रैकिंग करना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, एक्सपीडिशन। मैंने कहा यार ये पता है कि एवरेस्ट चढ़ने वाले की मैक्सिमम एज कितनी है? कहता नहीं सर 42-43 होगी। मैंने कहा 77 ईयर ओल्ड, जब 77 साल वाला एवरेस्ट चढ़ सकता है तो आप तो 50s में हो, तो कितने यंग हो। So it's just that the way you're saying, you know, you're never too old to follow your dreams. So चलते रहो। Absolutely. There are a lot of questions which are, you know, kind of common, and I'm sure you would have answered earlier, so I'm not taking that. Don't take it otherwise. You know, as Jacob said, those will be there on the Instagram page of Claw, so please go there and follow it up. And, you know, anything else you want to ask, I mean, which I feel is not being covered, that I've been asking. So, you know, last thing which comes is one incident जहाँ तुम्हें सबसे ज़्यादा रगड़ा लगा, जब लगा कि यार अब तो बस हो गई। Because I'm sure काफी इंस्टेंसेस लगेंगे, बट एक बार जब तुम्हें सचमुच ही लगा कि यार बस इससे ज्यादा नहीं होता। ऐसा मुझे कभी नहीं लगा सर कि इससे ज्यादा नहीं होगा, ऐसा मुझे कभी लगा ही नहीं। नहीं बाद में तो ठीक है, बट उस समय लगा हो कभी, जैसे है ना कि कभी लगा हो कि यार क्या हो गया है, कहाँ, एनीथिंग यू दैट?
नहीं सर, तो कभी नहीं लगा सर। मेरे ख्याल से I felt tired. I felt very tired. I felt fucked. I felt this, that, sir. मैं जब अपना I did probation twice, है ना सर? एक तो और जब तूने 6 महीने बोला मैं समझ गया था, मैंने कहा इसने जरूर कुछ कर रखा है। पहले तो 6 महीने वाला किया सर, 9 पैरा वाला, और Right. फिर एक और किया था सर मैंने, आप यू अंडरस्टैंड है ना सर? Yeah. I did that probation in 100% humidity in the months of May, June, July. ठीक है सर? I was already 32 years old when I did that probation. ठीक है सर? True. तो है ना सर, पहाड़ चढ़ के इतने साल चढ़ के घुटने और पीठ ढीली हो चुकी थी मेरी। ठीक है सर? तो it was difficult, and then again, you know, after being in 9 para SF, and then again somebody is telling you, है ना सर, कि जो ये कर लो वो कर लो, तो मैं तो देखता था यार इनको कि क्या बोल रहे हैं, है ना सर? तो बट इतनी गर्मी थी सर, इतना वो था, मतलब यू आर ड्रिंकिंग इलेक्ट्रॉल एंड शिटिंग इलेक्ट्रॉल, है ना सर? तो मतलब यहाँ 2 लीटर का इलेक्ट्रॉल बॉडी के अंदर जा रहा था और 2 लीटर इलेक्ट्रॉल बॉडी से बाहर निकल रहा था। तो पर ऐसा मतलब बहुत थका था, बहुत ये था वो था, बहुत मतलब सर बॉडी टूट रही थी, जो भी बहुत कुछ हुआ सर, बट कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कभी नहीं लगा। Wonderful. You know, I think that's what identifies you from other people. That's what I mean is. I'll tell you why it is so. Why it is so. है ना सर? Right. मेरा my satisfaction in my life when I feel happy about myself is because I'm doing it. अब वो नहीं हुआ तो मेरी गलती नहीं है ना सर? मेरी गलती तब होती अगर मैं वॉलंटियर नहीं करता, कुछ कर देता। हाँ, अगर मैं वो कोशिश ही नहीं करता तो मेरी गलती होती। मैंने तो कोशिश की है, बाकी तो है ना संसार के ऊपर है सर, है ना सर? एब्सोल्युटली ये है। और एज फार एज फीलिंग की अब नहीं हो सकता या ये है, तो मैं इतना फ्यूचर में नहीं देखता सर। जो मैं कर रहा हूं मैं वो उसी चीज को देखता हूं कि भैया अभी 40 किलोमीटर का स्पीड मार्च है या ये है, यही है, अभी ये करना है, ये तो मैं कर ही लूंगा, है ना सर? चलता रहूंगा तो हो जाएगा, कल की कल देख लेंगे, है ना सर? तो यू मस्ट लुक एट थिंग्स पीसमेल, है ना? अब आदमी जो आपको रगड़ रहा है उसको भी तो सोना है जाके, कब तक रगड़ेगा वो, है ना सर? एब्सोल्युटली। That's great. You know, I think more or less we are done and the time is also over. There's one question someone wants to ask. Do TA officer earn Balidan badge? I think Balara will be able to answer that, but No. Okay. TA officers are not authorized to wear Balidan badge. Balidan badge वो बंदा पहनता है who has served in a SF battalion. He has done probation. First thing, he has had to have done probation in an SF battalion. Second thing, he should be on the nominal roll of the SF battalion. He should be part of the battalion. He should not be on ERE. ERE. कुछ लोग होते हैं थोड़ा फ्रॉड लगा लेते हैं बलिदान, ठीक है सर? दैट इज रॉन्ग. दैट इज एक्चुअली आई फील वेरी सॉरी फॉर दोज पीपल कि है ना, उनकी खुद की इज्जत नहीं है, किसी और की इज्जत लगाना चाहते हैं, बढ़िया लगा लो, क्या फर्क पड़ता है? तो TA officers, there is a TA officer I believe who wears the Balidan badge. He wears it wrong. It is wrong. I have seen it on Instagram. मैंने देखा है. He is a Shaurya Chakra or something, whatever he may be, है ना सर? तो but he wears the Balidan badge and it is wrong. It is a fraud, है ना सर? तो it is not. They are not authorized. They are not from special forces. तो ये है सर. जिसने जो लगाना है लगा लो, खुशी मिली करते रहो, वो शॉपिंग कोई चीज है. मतलब तुम्हें इसी फ्रॉड से अगर if you are feeling happy, you are a macho, so might as well do it. So I think we are done with the interaction right now, Jacob. Amazing interacting with you. Personal front way, we'll keep interacting. But then thank you so much for your time. And you know, wonderful interacting. First time आपसे उससे बात हो, but then thoroughly enjoyed. You know, I didn't imagine इतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा. Initially तूने झटका दे दिया कि सर वो मत पूछो, फिर मैंने कहा कहाँ से लाऊं, क्या पूछना है. But then great time. पूछ रहे हैं. Well, in that, I'm sure most of the people are. No. It is not a joint. It is a cigarette. Asking कि ये joint है क्या? ये joint नहीं है. This is tobacco. वैसे by the way, अगर joint की बात चल रही है तो I'll just tell you about this joint thing.
ये तो शिव का प्रसाद है ना सर? ये तो हमारे हमारी हिस्ट्री है। प्लीज एजुकेट योरसेल्फ, है ना सर? ऑल दिस पीपल हु थिंक दिस दैट, फकिंग एजुकेट योरसेल्फ, गो ऑन टू YouTube, go on to and try medicinal value of ganja, medicinal value of, you know, these things. These are great things which have been suppressed by Western Roman society. sir is recording it. हाँ, नमित ये मरवाएगा, मेरे को लग रहा है इनको और कुछ काम नहीं है। भगवान का प्रसाद देके हमें बताएगा। So I think we will close it for the timing before or overboard that. So thank you so much, Jacob. Thanks everyone. They really enjoyed. Thank you, Bye bye. sir. Good night. Jai Hind. See you. All the best. Right, sir.